हाँ जी बेटा, we did id, we did ego. Now we are going to talk about superego, which is on page number 35. Superego क्या है? The best way to characterize the superego is to think of it as the moral branch of mental functioning. ये उससे ऊपर का लेवल हो गया. The superego tells the id and the ego whether gratification in a particular instance is ethical or not. है ना? It helps control the id by internalizing the parental authority through the process of socialization. तभी तो बच्चों को इनिशियल स्टेज पर बच्चों को पेरेंट्स के अंडर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विद देयर गाइडेंस क्या सीखते हैं बच्चे? अपनी इड पर कंट्रोल करना. ओके, सो प्लेजर से बाहर आइए और जानिए, रियलिटी में एंटर कीजिए. सो for example, if a boy sees and wants an ice cream cone and asks his mother for it, his superego will indicate that his behavior is morally correct. फिर अंदर से आवाज आती है, नहीं यार मैंने बड़ा अच्छा काम किया. ये किसने कहा? superego tells you. ओके, जो ये हम कहते हैं मन की आवाज, आत्मा की आवाज, ये साइकोलॉजी में उसे हम ईगो एंड सुपरईगो के नाम से जानते हैं या इड के नाम पे. ओके, his behavior is normally morally correct. This approach towards obtaining the ice cream will not create guilt. अगर चोरी करके खा लेते छीन के तो बाद में गिल्ट रहता, फियर रहता कि क्या कर दिया, गलती हो गई, एंजाइटी भी हो जाती, तो वो सब नहीं होगा. Thus, in terms of individual functioning, Freud thought of the unconscious as being composed of three competing forces. In some people, the id is stronger than the superego. In others, it is the superego which is dominating, right? The relative strength of the id, ego and superego determines each person's what? Stability. हम कितने stable हैं बताता है. Freud also assumes that id is energized by two instinctual forces. कौन सी? एक life instinct, एक death instinct. ये दो forces हैं जो id को probe करती हैं, energize करती हैं. He paid less attention to the death instinct and focused more on the life instinct. जो वो बंदा जिसने रेप अटेम्प्ट किया, उसने ये नहीं सोचा कि बाद में क्या होगा, लोगों ने पकड़ लिया तो मार डालेंगे, पुलिस ने पकड़ा तो. उसकी क्या इंस्टिंक्ट ज्यादा थी? जीने, इस टाइम मैंने ये बस आई हैव टू अटेम्प्ट दिस स्टूपिड क्राइम. सो लाइफ इंस्टिंक्ट डोमिनेट्स. The instinctual life force that energizes the id is called libido. So you have to remember for 1 mark. It works on the which principle? I want pleasure right now, pleasure principle, and seeks immediate gratification. ठीक है? So आपको पेपर में आ सकता है fill in the blank में id के दो instincts और libido किसको कहते हैं. Correct? राइट. अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. तो यहाँ से आएगा कैसे? ऊपर लिख लो काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. नीचे काइंड्स दिए हैं ना इसके, इस पेज के ऊपर लिख देते हैं. अकॉर्डिंग टू फ्रूइड, मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स एन अटेम्प्ट टू डील विद और एस्केप फ्रॉम एंजाइटी. Thus, how the ego deals with anxiety largely determines how people behave. Freud believed, यहाँ अंडरलाइन करो, Freud believed that people avoid anxiety mainly by developing defense mechanism. लोग हैंडल नहीं कर रहे एंजाइटी, अवॉइड करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म से, that try to defend the ego against the awareness of instinctual needs. कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं? The defense mechanism is a way, अंडरलाइन कीजिए, मीनिंग है उसका, of reducing anxiety by distorting reality. अब उस बच्चे से पूछा जी पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था एकदम से, मैं तो मुझे कंट्रोल कोई और कर रहा था. ऐसे वाले बहाने बनाना, ताकि क्या किया हमने? रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया. एक्चुअली ये नहीं बताया कि मेरी इड थी जो मेरे ऊपर हावी थी. बोला क्या? मुझे पता नहीं, who somebody was controlling me. What am I doing? It's something like when you reach late to school and your gatekeeper or the teacher asks, why were you late? Do you say that I got up late in the morning? No. What do you say?
मैम वो रास्ते में ट्रैफिक ही बहुत था, मेरा स्कूटर खराब हो गया था, मुझे ये नहीं मिल रहा था, बेकार की कहानियां। हम क्या कर रहे होते हैं, रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम उसे क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस में आ जाते हैं, हर रोज करते हैं हम, देखना। ओके, ऑल्दो सम डिफेंस अगेंस्ट एंजाइटी इज नॉर्मल and adaptive. It's okay till some extent. People who use these mechanisms to such an extent that reality is truly distorted develop various form of maladjustment. कुछ हद तक आपने मैनिपुलेट किया, चल गया, लेकिन आपने बहुत ज्यादा कर दिया, this will lead to malpractices. Okay, maladjustments. Through it has described many different kinds of defense mechanisms. The most important is repression. Underline कर दो, ये नंबर 1 है, इन विच क्या करेंगे हम, एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड, मना ही कर दिया, मैंने तो किया ही नहीं, रिप्रेस हो गया जी, टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस. व्हेन पीपल रिप्रेस अ फीलिंग और डिजायर दे बिकम टोटली अनअवेयर ऑफ दैट विश ऑफ डिजायर. मुझे पता ही नहीं है हुआ क्या ना, दस आई डोंट नो, है ना, Why I did that, मुझे पता ही नहीं है कैसे हो गया, मैंने क्यों किया, ये डिनाई कर दिया. ठीक, so some repressed feeling or desire is expressing itself. So this shows what the person has practiced, repression. When the person says I don't know how this has happened, I really don't know ये कैसे हो गया, मतलब इतने हैरान होना, है ना. आपको मम्मा ने बोला दूध का बॉयल आ रहा है, पास में खड़े हो जाओ बेटा, आपका ध्यान पता नहीं कहाँ, इधर उधर मस्ती कर रहे हो, फोन देख रहे हो, दूध उबल गया. अब मम्मी तो सवाल पूछेगी, बेटे क्या कर रहे थे, पता नहीं मम्मा ये कैसे हुआ. ये लाइन क्या है, रिप्रेशन. ओके, आई विल, इफ आई एम नॉट एडमिटिंग दैट यस आई वाज बिजी डूइंग दिस, सो आई डोंट नो व्हाट हैज, ये हुआ कैसे, बस, तो ये क्या हुआ, रिप्रेशन. अदर जैसे गाड़ी चलाई, है ना, गाड़ी चला रहे हैं, बैक किया, मार दिया खंबे पे, ध्यान था ही नहीं, आगे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ. अब डैडी तो पूछेंगे, बेटा ये बिजली लाइट कैसे टूटी, पता नहीं क्या हुआ था एकदम से, बस ये इसे कहते हैं रिप्रेशन. अदर मेजर डिफेंस मैकेनिज्म्स आर प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रैशनलाइजेशन. प्रोजेक्शन से स्टार्ट किया, पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर्स. ठीक, प्रोजेक्ट कर दिया, कैसे, thus a person who has a strong aggressive tendencies may see other people as acting in an excessively aggressive way towards him or her. मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं एग्रेसिव रहती हूँ, पर मैंने इसको कैसे डिनाई किया, आप हर टाइम पर एग्रेसिव क्यों रहते हैं, मतलब जो मेरी फीचर है वो मैंने दूसरे पर थोप दिए, प्रोजेक्ट कर दिए कि मैं नहीं हूँ ऐसी, ये है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन. मीन्स अबाउट समबडी यू प्रोजेक्टेड द सेम इमेज विच यू एक्चुअली आर. ऑलरेडी, ऑलराइट, आगे चलते हैं. डिनायल, डिनायल तो नाम से ही पता चल रहा है, डिनायल अ पर्सन टोटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी. वहां तो कहा था पता नहीं कैसे हो गया, बोला ये मैंने नहीं किया. ओके, सो दस समवन सफरिंग फ्रॉम एड, हाँ ये मैंने नहीं किया भाई, ये डिनाई करते हैं. डिनायल का मतलब डिले भी होता है. Someone who's suffering from AIDS or HIV may altogether deny his or her illness. वो, और हमारे देश में तो डिनाइल की वजह से ही प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोग, जैसे अगर बहुत सारे बच्चे सिजोफ्रेनिया भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे बचपन से ही ADHD हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको आइडेंटिफाई करके भी घर में चुप रहते हैं, पता नहीं किस वजह से डिनाइल मोड में ही रहते हैं. अगर उनको शुरू से ही ये प्रॉब्लम पकड़ ली होती तो आई थिंक उनका इतना बुरा हाल नहीं होता, शुरू से ट्रेनिंग उस हिसाब से हो जाती. बट पीपल आर मोस्टली इन डिनाइल मोड. कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, नो दिस कैन नॉट हैपन टू मी, मेरे बच्चे को नहीं हो सकता, अरे है तो फिर डिनाइल मोड में नहीं रहिए, एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड. मूविंग फर्दर, ओके, इन रिएक्शन फॉर्मेशन a person defends against anxiety by adopting behaviors opposite to his or her true feelings. बिल्कुल opposite. A person with strong sexual urges who channels his or her energy in religious fervor. मैंने बोला था ना, मतलब बिल्कुल opposite में divert कर देना, पूजा पाठ करना शुरू कर देना. Energy presents a classical example of reaction formation. And the last one is rationalization.
अ पर्सन, आपको ये सारी एग्जाम्पल्स बेटे याद रहनी चाहिए क्योंकि पेपर में बहुत बार सेम एग्जाम्पल कोट करके बोलते हैं ये एग्जाम्पल किस वाले डिफेंस मैकेनिज्म की है. So you should be familiar with all the examples, right? Rationalization, a person tries to make unreasonable feelings or behavior seem reasonable and acceptable. मतलब एक अनरीजनेबल फीलिंग को हमने कैसे बना दिया, नो ये ठीक तो था, इसमें क्या प्रॉब्लम है. मतलब आपने उसको जनरलाइज कर दिया, ये रैशनलाइज जस्टिफाई कर दिया अपने बिहेवियर को. क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? फॉर एग्जाम्पल, when a student buys a set of new pens after doing poorly in an examination, हाँ इस एग्जाम्पल से याद रखिएगा. तो वो कैसे रैशनलाइज, बहुत बुरा काम किया उसने, पेपर बड़ा गंदा हुआ, उसने क्या बोल दिया, मेरा पेन ही खराब था. क्या जनरलाइज किया, सारा का सारी बात क्या कर दी, पेन पे ही डाल दी. पेन बेकार था, पेन बहुत बार ना लकी चार्म है मेरा, ये है, ये भी इसी का ही वो है एग्जाम्पल. सो हिज और हर बिहेवियर, आई विल डू मच बेटर विद दीज न्यू पेन्स नाउ. पहले पेन खराब थे. People who use defense mechanisms are often unaware of doing so. उनकी ये हैबिट में आ जाता है, उन्हें पता नहीं होता ये कर रहे हैं. Each defense mechanism is a way for the ego to deal with the uncomfortable feelings produced by anxiety. ये की क्यों जाती है, क्योंकि मुझे अपनी एंजाइटी को कम करना है, मुझे वो बुरा नहीं लगना, बुरा फीलिंग ना आए, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगा दिया. However, Freud ideas about the role of defense mechanism have been questioned. For example, his claim that projection reduces, उसने claim किया, projection reduces anxiety and stress has not found support in several studies. हमें उस टाइम टेम्पररली एक रिलीफ लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या वो स्ट्रेस को रिलीव करता है, नहीं. ओके, देन कम्स द स्टेजेस of personality development. I think you've done this in class 11. You might have done all the stages. Okay, let's go one by one. पहले हम चलते हैं stages of personality development. Freud claims that the core aspects of personality are established early, remain stable throughout life, and can be changed only with great difficulty. He proposed a 5-stage theory of personality. इसे बोलते हैं psychosexual development problems encountered at any stage may arrest development and have long-term effect on person's life. A brief description of these stages is given here. सबसे पहली stage है oral stage. A newborn instinct are focused on the mouth. Infant की बात कर रहे हैं, जिसे सिर्फ अपनी भूख के बारे में ही knowledge होती है. So this is the infant's primary pleasure-seeking center. It is through the mouth that the baby obtains food that reduces hunger. The infant achieves oral gratification. First है ना stage oral, underline. अब उसकी oral gratification है, कैसे होगी? Through feeding, thumb sucking, biting and babbling. This is what a child does. हम उसकी क्या-क्या stage में क्या-क्या development होती है उसकी बात कर रहे हैं. It is during these early ones that people's basic feelings about the world are established. मतलब उसे पता चला कि मैं दुनिया में हूँ, बस कुछ दिख रहा है इधर उधर, expression नहीं होते. Thus, for Freud, an adult who considers the world a bitter place probably had difficulty during the oral stage of development. जिसको बड़े होकर लगता है ये this world is not a nice place, इसका मतलब उसका oral development stage जो था that was inappropriate. उसकी उस टाइम पर जो फीडिंग होनी चाहिए थी, जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था, वो उसे नहीं मिला. Okay, so this stage is very important. Second is anal stage. It is found that around ages 2 and 3, 2 से 3 साल तक, the child learns to respond to some of the demand of the society. Underline, कुछ demands को वो address करने लगता है. One of the principal demands made by parents is that child learns to control the bodily functions of urination or defecation. मतलब बच्चा खड़ा तो होने लगता है, उससे भी पहले होता कि वो अपनी urinary habits में अच्छा हो गया, सुसु पट्टी बताने लग गया. So this is that stage. Okay. Most children at this age experience pleasure in moving their bowels. आंखें घुमाते हैं बच्चे, देखा बड़े क्यूट लगते हैं ऐसे, मतलब वो मूवमेंट करते हैं.
उनके पंखों के ऊपर वो लगा देते हैं, वो बलून्स लगा देते हैं लोग, तो वो जब घूमते हैं तो दे जस्ट लुक एट दिस, ऐसे 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 पूरा वॉच करते हैं. सो इट मीन्स दैट इज द स्टेज व्हेन दे डेवलप एंड दे सी कलर्स एंड दे सी they can notice that something is rotating. The anal area of the body becomes the focus of certain pleasurable feelings. This stage establishes the basis for conflict between the id and the ego. इस stage में होती है जिद वाली बातें, और फिर जब समझाया जाता है तो ईगो डेवलप की जा रही है उसकी. ओके, नो, यू आर नॉट सपोज टू आस्क लाइक दिस, यू आर नॉट सपोज टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर. इफ यू वांट समथिंग प्लीज कन्वे. इफ इट इज इन माय हैंड्स आई विल प्रोवाइड इट टू यू, इफ नॉट आई विल गाइड यू. सो दिस इज द वे हाउ डू वी हैंडल. This stage establishes the basis for conflict between id and ego, and between the desire for babyish pleasure and demand for adult controlled behavior. Okay, now comes the phallic stage, which is very, very important, which will be done in the next video. All right, thank you.